Hey you guys, this is Manishi Rathod here, back with another video. Everyone were commenting and asking for literary theory strategy. I have said the best strategy for British literature, but what about literary theory? And we all know that literary theory is one of the topics that we should put more focus on, because the past from the trend, as we see the trend from past 2 to 3 years, we see that there are more questions on literary theory. So I myself is here to give you all the tips and tricks and to help you. It is the city of the cooker, sorry. So to help you that how you can access more marks in literary theory. So let me just, this is gonna be a really quick video where we are going to only speak about how you are going to uplift, how you are going to understand the theories. Because what we see is नेट और सेट में आजकल क्वेश्चंस जो है थ्योरी किसने प्रपाउंड की इस पे तो पूछे ही जाते हैं, बट थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी देखे जा रहे हैं. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि फिर वो आपको चेक करते कि आपने डीप स्टडी किया है कि नहीं, कि खाली आपने रट्टा मार लिया कि थ्योरी किसने प्रपाउंड की, कौन है थ्योरिस्ट, उसमें उसने क्या बोला है. ये रट्टा भी मार सकते हैं काफ़ी लोग, इसलिए वो चेक करते हैं कि तुम्हारा मतलब स्टडी लेवल कितना डीप है. इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है. इसलिए विदाउट फर्दर अड्यू वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट हाउ वी कैन डीपली at the deepest level study literary theory. So thank you for watching this video and welcome you all once again. So for literary theory, I had my MA. While I was doing my MA, in my second year I had literary theory. So that's why our sir, Ubade sir, he suggested us one book, and that was Beginning Theory by Peter Barry. The whole nation knows about this book. Every English literature student, फ्रॉम बीट प्रोफेसर टू स्टूडेंट, बच्चा बच्चा इंग्लिश लिटरेचर का जानता है कि अगर लिटरेरी थ्योरी पढ़नी है तो किससे पढ़नी है, बिगिनिंग थ्योरी से. बट आई एम हियर टू से दैट दिस इज अ गुड बुक. It is going to help you, but do you really have such a big time that you are going to read it and fully? So I read it. It was good for me because I was preparing for my MA semester exam, 3rd, 4th semester. So I read it, and what I did was, let me make it very clear to you. What I did is I just highlighted the pages that I think, the points that conveys what is most important about this theory. As you can see, I have always written to claim decipher a text becomes futile. किसी पाठ को समझने का दावा निरर्थक हो जाता है. ऐसा कौन बोलते हैं? रोनाल्ड बार्थस बोलते हैं. फ्यूटाइल मतलब इन फ्यूचर, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर. So this is what, see, I have written everything. And तभी as मैं बोलूँ तो मेरा तो मतलब MA का एग्ज़ाम था, इसलिए I was very deepest while studying. और मैंने बस स्टडी नहीं किया, मैंने ये पॉइंट्स पूरे लिखे हुए हैं और फिर मैंने उसको रीड करके वो मेरे एग्ज़ाम में ट्रांसलेट करके लिखा है. आई वॉज, लेट मी ऑल्सो से यू दैट I have secured 2nd rank in the Department of English. So I am a hustler, if you look at it like that, but you can also be, and no need of securing any ranks, you can qualify this exam, set exam. There is, anyone can qualify this exam, you just need a staunch belief in yourself. So this is the book Literary Theory, and there are so many points. Like, you guys, Barbara Johnson's definition is also given here. Then there is the read the text against itself is what post-structuralist critics do. Then process of deconstruction in revealing the unconscious of the text might draw upon such disciplines as etymology in this way. Oh my god, this book is a holy grail if you want to read it. But what you should do is, ज़्यादा दिन इसमें वेस्ट ना करिए, बस 2-3 days, 3 days में क्या करिए, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चंस देखिए आप. तो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट मॉडर्निज्म और साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा आते हैं. लेट मी जस्ट शो यू. So I think more questions come from
post structuralism, postmodernism, psychoanalytical criticism, and then new historicism and Marxist criticism, and also feminist criticism. There are more question asks. So what you can do is you can just look at what are the things. पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म पे भी क्वेश्चन पूछने लग गए, तो बस उतना ही रीड करो. डोंट रीड so much things that you will be confused for yourself. रीड जस्ट जिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि तुम एक बार ये कर लो और फिर उस पे रीड करो, तो वैसे ही तुम जो है ऐसे करो और रीड कर लो जो जो इम्पोर्टेंट तुमको लगते हैं. फालतू का मतलब ये देखो, मैंने भी जो जो इम्पोर्टेंट लगा, डिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, वो रीड कर लिया. तुम अगर बिन फालतू का मतलब रीड करते रहोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है, और अगर वेस्ट होगा तो हमको फिर बाकी के चीज़ पे भी फोकस करना है. ठीक है. सो मैंने आपको बता दिया है कि हमने कैसे रीड करना चाहिए. कौन सा जो इम्पोर्टेंट लगता है वही मार्क करो और उसमें फिर रीड करो. ये रीडिंग हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमको समझे कि थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है, किसने क्या बोला है. हम ये इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि हमको समझे कि एक आधे लिटरेरी थ्योरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोस्ट मॉडर्निज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं. तो आप वो भी ध्यान में लो, और आपको जैसे ही लगता है कि ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो लिख लो. मैंने जो भी पॉइंट आपको दिखाए, जो भी मैंने हाईलाइट किए थे, आई हैव रिटन ऑल ऑफ दैट पॉइंट इन माई नोटबुक. सो दैट वॉज अ बिग थिंग, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप फॉर लिटरेरी थियोरी. ये हो गई आपकी, या फिर ये आप सेकेंड स्टेप भी कर सकते हो. फर्स्ट स्टेप ये कर लो. दिस इज़ वेरी क्रूशियल. आई हैव नेवर सेड इट टू एनी वन, बट as you guys are supporting me and with a lot of your love comments, I feel very heartfelt, and that's why I'm saying it to you. What I did is, every time I listen a video, I just don't listen it. I write each and everything that the video wala person says, and I did so, and I have got the whole literary theory in such a small bunch. Like you can see it. These are literally 10 to 12 pages, and I have written the whole literary theory. मतलब किसने कौन सी theory propound की, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म आया, मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म आया, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आया, एंड व्हाट नॉट यू गाइज. इसमें हेनरी जेम्स आए, टी.एस. इलियट आए, जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड आए, सब पोस्ट कॉलोनियलिज्म, एंटोनियो ग्राम्शी, होमी के बाबा, सब लिखा है भाई मैंने. Raymond Williams, सब, Terry Galton. I am so excited to show this notes because you are going to qualify this time no matter what using this strategies. Yes. So this is my trick. This was my trick. And this is one of the best by far. इसमें से मुझे, इस नोट्स में से मुझे 10 से 15 क्वेश्चन दिखे होंगे सेट में, बिकॉज ये नोट्स इतने मन लगा के, ध्यान लगा के बनाए थे. लेट मी शो यू. I have made the notes with lot of love, you guys. Poetry is pseudo statement. Who said this? I.A. Richards. Then practical criticism, close reading, 4 types of meaning, sense, feeling, tone, intention. The principles of literary criticism. कब? 1924. I.A. Richards कौन थे? Founder of School of Interpretation, New Criticism. फिर विलियम इब्सन के 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज, उसमें कौन से 7 टाइप्स है वो लिखे. फिर उसमें डेट भी लिखी. फिर अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स, क्लिंट ब्रुक्स, तो उसने कौन से लिखे, उसमें किसके साथ उसने पब्लिश किया, रॉबर्ट पेन वैरन के साथ. फिर उसके साथ क्या क्या किया उसने, क्या किया, द वेल रॉट ऑन में उसने बोला स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री. फिर उसने लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स के बारे में बात किया. तो क्या है, 2 टाइप्स है. तो आयरनी है, वंडर है. आयरनी है द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. वंडर ये है, ये देखिए. Like this notes are holy grail and I have made it with so much love. मतलब ऐसा नहीं कि लिखना है, ये देखो एफआर लुइस आ गया. ऐसा नहीं कि बस जॉन क्रो रैंसम, एवरी नोट. सो ऐसा नहीं लिखना है इसलिए लिखा, नहीं भाई, बहुत जान लगा के लिखा. चार्ल्स सैंडर्स पियर्स भी आ गए इसमें. फिर प्राग स्कूल भी आ गई. कब आई थी? 1920s में. किसने दिया था? विलियम मैथिसिस ने. ऐसा तुम ना पूरा ऐसे जी जान लगा दो भाई. मतलब नोट्स भी लिखो ब्रो, तुम सब कुछ करो, तुम एंजॉय भी करो, तुम क्वालिफाई भी कर लो, पर नोट्स इतने जी जान लगा के लिखो कि मतलब बाद में वो नोट्स. ये देखो, नॉर्थ ऑफ फ्राई, मिथ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, किसमें बोला है? इसमें बोला है, फियरफुल सिमेट्री में, बुक ऑन विलियम ब्लेक. देखा, मतलब तुम पूरा जी जान लगा के नोट्स लिख दो भाई. किसने? जैक जरीदा ने. डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेस, डिकंस्ट्रक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्टिन हेडेगर, बीइंग ऑन टाइम, ये बुक है उसके 1927 की. ऐसे मतलब मैंने पूरे नोट्स बनाए, और ये पूरे 12 पेजेस में मैंने पूरा कवर किया. ये देखो, अभी मॉडर्निज्म आ गया. हाँ,
फिर नीचे आ गया सिगमंड फ्रॉइड आ गया, उसका क्या है साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, उसमें ओरल एनल फैलिक इसके बारे में बोला है उसने। वर्जीनिया वुल्फ आ गई, टी.एस. इलियट आ गया। मतलब इतना मैं माँ कसम बोल रही हूँ, मुझे ऐसा था कि इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, और इतना मतलब मैंने जी जान लगा दी। डी.एस. लॉरेंस आ गया, जेन बोडलियार भी आ गया, क्या है वो एंटी कैपिटलिस्ट है। फिर उसने क्या कंजम्पशन हैज अ की रोल इन पोस्ट मॉडर्निज्म, उसने क्या बोला आर सेल्फ इज क्रिएटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमरिज्म। ये ऐसे फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते, हु डू यू थिंक सेज आर सेल्फ इज क्रिएटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमरिज्म, तो जेन बोडलियार। अगर तुमने डिटेल में पढ़ाई नहीं की होगी लिटरेरी थियोरी के तो अटक जाओगे भाई तुम, क्योंकि लिटरेरी थियोरी पे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो दीज आर माई नोट्स एंड ये देखो पोस्ट कॉलर एंटोनियो ग्राम्सी, मार्क्सिज्म जॉर्ज लुकस, गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक, सब सब सब, पार्था चैटर्जी, सब लिखा, वॉल्टर बेंजामिन, टेरी ईगल्टन, रेमंड विलियम। सो तुमने देख लिया मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। अब टाइम आता है कि मैंने किस से बनाए, किस वीडियोस को देख के मैंने नोट्स बनाए। तो ऑफकोर्स मैंने ये कल्याणी वल्लाद मैम के वीडियोस को देख के नोट बनाए हैं। तो ये नोट्स है, ये ऑल टाइम फेवरेट है, और बहुत मतलब आप देख रहे हो कितना पतला सा है, मतलब इतना। पर मुझे ये नोट्स बनाने को कितने दिन लगे? 4 दिन। मेरा एक दिन में एक वीडियो होता था। कैसे बनाने हैं वो भी बता रही हूँ। एक दिन में मेरा एक वीडियो होता था, और वो एक वीडियो को मतलब एक लाइन बोली है वल्लाद मैम ने, वो मैंने लिखी है। दूसरी लाइन बोली है, पॉज करके लिखी है। ऐसा मेरा एक वीडियो जो कुछ 1.5-2 घंटे का, 1.5 घंटे का ही है, उसको मैंने पूरा एक दिन लगा दिया। तो ऐसा 3-4 दिन में बट मेरे पूरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नोट्स कंप्लीट हो गए। और मतलब इतना डिटेल, मतलब मैम ने बोला आई रिचर्ड्स सेज प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, स्टॉप। आई रिचर्ड्स कब डेट वगैरह लिख दी, डेट, बर्थ डेट और डेट। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म, उसमें इन दैट ही टॉक्स अबाउट यूजेस ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक एंड इमोटिव। फिर स्टॉप, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक, इमोटिव लिख लिया। फिर देन ही पब्लिशेस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 लिख लिया, in which he talks close reading, 4 types of reading. फिर 4 types of meaning लिख दिया। फिर उसके बाद सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन ऐसे लिखा। मतलब इतना मैंने कीनली वो पूरे लिखे। फिर ऐसे ये न्यू क्रिटिसिज्म का हुआ, ऐसे पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, फिर उसके बाद क्या साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, फिर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फिर न्यू हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म, पूरा मैम ने पूरा डिटेल कवर कर रखा है। एंड फॉर योर कन्वीनियंस आई विल पुट द लिंक बिलो, so that you can find that video very easily. So this is how first you listen to ma'am's video, make such notes what I said, और पूरा जी जान लगा के नोट्स बनाओ। एकदम ऐसे ध्यान देके सुनो और ध्यान देके नोट्स बनाओ, ठीक है? 3 दिन में तुम्हारे नोट्स हो गए, कोई टेंशन नहीं रहता, तुम्हारा लिटरेरी थ्योरी कवर हो गया इधर। क्योंकि तुम समझ रहे भी हो वो मैम क्या बोल रही है, देख रहे भी हो, तुम्हारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है, लिसनर लर्नर भी हो रहा है, और फिर तुम राइट कर रहे हो, मतलब तुम्हारा राइटर लर्नर भी हो रहा है। 3 स्टेजेस पे तुम पढ़ रहे हो, 3 स्टेजेस पे तुम समझ रहे हो। दैट इज अ बिग डील। सो व्हेन यू डू लाइक दैट, आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग एल्स। सो आफ्टर डूइंग दिस, देन इफ यू फील कि तुम्हें और वीडियोस देखने हैं, देन आई विल सजेस्ट यू सिंपली लिटरेचर। दिस वन पर्सन हु टीचेस वेरी नाइसली, उसका वीडियो तुम बिना मतलब तुम नोट्स बनाओ और देखो, सिंपली लिटरेचर वाला, ठीक है? उसका भी लिटरेरी थियरी है। और फिर ये सब लिखने के बाद इसको 3-4 बार, मतलब मैंने तो एग्जाम के पहले बहुत बार रिवाइज किया था, वो रिवीजन के टिप्स और ट्रिक्स में बाद में डालूंगी। बट तुम ऐसे लिख के फिर सिंपली लिटरेचर का वो सुन लो, उससे थ्योरी समझ लो, और फिर अगर तुमको लगे तो ये बुक रीड कर लो, ठीक है? अगर तुमको टाइम मिले तो ये बुक फटाफट से रीड कर लो, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। अभी तुमको लिटरेरी थ्योरी समझ भी चुका है, तुम लिख भी चुके हो किसने क्या प्रपण किए, किसके कौन से काम है। अब उनको रोज सुबह उठ के रीड करो और रात को सोने के पहले रीड करो। सो दिस वॉज इट गाइज फॉर लिटरेरी थियरी, एंड I am very hungry now. I was shooting this video for you, and right now I have to eat my food, and then I will just let me know that which videos you need more, on which topics you need notes making strategies, on which topic you need that I should cover, and then I will cover it for you. If you like the video, please do not forget to share, because this is a new channel. With your support only, with your love, with your support, I can bloom like a flower. So please don't forget to share, subscribe and like, and do comment if you like it useful. Thank you.